Welcome, my dear students, to the beautiful session on inequality. Now, this is going to be a very, very important session on equality. ध्यान से देखना, और अगर मैक्सिमम इन वाले क्वेश्चंस को नहीं किया है ऑलरेडी टैकल, तो थोड़ा सा परेशानी आ सकती है. तो यू कैन ऑल्सो वॉच द मैक्सिमम इन सेशंस अगर उनको अब तक चेकआउट नहीं किया है तो. ठीक है. और AMGM इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी आज हम टैकल करेंगे. कुछ तो हमने मैक्सिमम में कवर किया हुआ है, कुछ और एडवांस्ड और बेटर क्वेश्चंस को आज कवर अप करेंगे. फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट को. So we've already studied that AM is greater than equal to GM is greater than equal to HM. Arithmetic mean is greater than equal to geometric mean, and geometric mean is greater than equal to harmonic mean. So if there are two numbers, let us say A and B, and their arithmetic mean is A plus B by 2, that is greater than equal to geometric mean, which is square root of AB, and that is greater than equal to harmonic mean, which is 2 upon 1 upon A प्लस 1 upon B. और जनरलाइज करें अगर हमारे नंबर्स हैं A1 A2 till AM, then arithmetic mean is the average. So A1 plus A2 till AN divided by N, that is greater than equal to A1 into A2 into A3 till AN to the whole power 1 by N, and that is greater than equal to N upon 1 by A1 प्लस 1 बाई A2 टिल 1 बाई AN. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. एडिशनली एक और कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, दैट इफ देयर आर टू नंबर्स x एंड 1 बाई x, बेसिकली एक ही नंबर है, x इज अ ग्रेटर नंबर, x इज ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इन दैट केस x प्लस 1 बाई x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिकॉज यहां पे क्या करोगे, AMGM इनइक्वालिटी लगा दोगे. तो x प्लस 1 बाई x बाई 2 will be greater than equal to square root of x into 1 by x, which is 1 only. So that is why x plus 1 by x is always greater than equal to 2 when x is a positive number. Another important part is when x is less than 0, in that case x plus 1 by x is less than equal to minus 2. So in the first case minimum value 2 आएगी, 2 से बड़ा ही नंबर आएगा x plus 1 by x अगर हमारा x एक पॉजिटिव नंबर है. सेकंड केस में x अगर एक नेगेटिव नंबर है, then x plus 1 by x will always be less than equal to minus 2. ये दो बातें अगर समझ में आ गई हैं तो अब क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन 4. अब क्या इस क्वेश्चन को तुम जो चीजें अभी हमने रिवाइज की उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो? सबसे पहले तो कनेक्शन देखना है. तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 इज द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर है 4 माइनस x. So if we square 4 minus x, this will be equal to x square minus 8x plus 16 and plus 17 है यहाँ पे, यानी plus 1 है. So can we write this as 4 minus x whole squared plus 1 upon 4 minus x. क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. Also we've been given that x is greater than 4, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से पता चलेगा हमें कि 4 minus x हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. So if x is greater than 4, तो x minus 4 is a positive number. Minus 1 simplify कर दो. So minus of x minus 4 will be less than 0. This will be less than 0, which implies that 4 minus x will be less than 0. So this is a negative number. और यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा क्या बन के आ रहा है? 4 minus x whole square divided by 4 minus x will be 4 minus x plus 1 upon 4 minus x. So if you assume 4 minus x as equal to y, in that case this will become y plus 1 by y, and y is less than 0. So y plus 1 by y will definitely be less than equal to minus 2. या 4 minus x plus 1 by 4 minus x will be less than equal to minus 2. तो maximum value क्या आ जाएगा? Maximum value of this expression will be minus 2. So that will be the answer. Minus 2 will be the answer to the question. क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इफ a b and c are positive real numbers, then find the minimum value of 3 by 2 times a plus b plus c plus 1 by a plus 1 by b plus c plus 2 by a plus b plus c. ठीक है. अगर आंखों में थोड़ी सी थकान लग रही हो तो रात के अभी 2 बज रहे हैं जब मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं. ठीक है. चलो, तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो करने का. सेम अप्रोच होगा. कुछ कुछ चीजें तुम्हें नजर आ रही होंगी. क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? a प्लस बी प्लस सी इंटू 3 by 2 नजर आ रहा है, 1 by a नजर आ रहा है, 1 by b plus c नजर आ रहा है, और साथ में 2 by a plus b plus c नजर आ रहा है. यानी somehow
अगर हम a प्लस 1/a कर दें तो इसके लिए तो मैंने वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली 1/b प्लस सी और यहां पे b प्लस सी भी गिवन है, तो अगर हम b प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी को भी सेपरेट कर लें तो इसका भी हम वैल्यू निकाल पाएंगे, बिकॉज b प्लस सी इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, ए बी सी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर से। बच जाएगा इसके बाद में 2/a प्लस b प्लस सी, और क्या सेपरेट बचेगा, यहां से यहां था 3/2 टाइम्स a प्लस b प्लस सी, और हमने a रिमूव कर दिया है और राइट हैंड साइड में b प्लस सी और रिमूव कर दिया है। ठीक है, b प्लस सी है, बी सी नहीं है, सो b प्लस सी, सो a प्लस b प्लस सी को हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। रिमेनिंग बचा है हमारा 1/2 टाइम्स a प्लस b प्लस सी, प्लस 2/a प्लस b प्लस सी। ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम, a प्लस b प्लस सी बाई 2 प्लस 2/a प्लस b प्लस सी, और अगर a प्लस b प्लस सी बाई 2 को तुम x कर दोगे तो दिस विल बी x प्लस 1/x, है कि नहीं। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं a प्लस 1/a प्लस b प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी प्लस a प्लस b प्लस सी बाई 2 प्लस 2/a प्लस b प्लस सी। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, नाउ वी नो दैट a प्लस 1/a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, b प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी, b प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी, दिस विल आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बिकॉज b प्लस सी इज पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली ये वैल्यू भी क्या है, a प्लस b प्लस सी बाई 2 और दिस इज 1/a प्लस b प्लस सी बाई 2, सो दिस विल आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे, क्या यहाँ पे इक्वालिटी हमारा हो पाएगा जिन वैल्यूज पे हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन मिनिमम आ रहा है, क्या उन्हीं वैल्यूज पे सेकंड और थर्ड भी मिनिमम आ रहे हैं, ये जरूर चेकआउट करना है। सो कब मिनिमम होगा a प्लस 1/a, a प्लस 1/a मिनिमम तब होगा व्हेन a विल बी इक्वल टू 1/a, which implies that when a is equal to 1, when a is equal to 1. Similarly second expression में होगा when b plus c is equal to 1/b plus c, which implies that b plus c is equal to 1. So first expression हमारा मिनिमम तब होने वाला है when a is equal to 1, second expression मिनिमम तब होने वाला है जब b plus c is equal to 1, और थर्ड एक्सप्रेशन कब मिनिमम होगा, थर्ड एक्सप्रेशन हमारा कब मिनिमम होगा when a plus b plus c by 2 is equal to 2/a plus b plus c. So a plus b plus c का होल स्क्वायर हो गया 4, और क्योंकि a plus b plus c पॉजिटिव नंबर है सो रिजल्ट आ जाएगा हमारा a plus b plus c विल बी इक्वल टू 2। क्या ये वैल्यूज हमारी कंसिस्टेंट है, फर्स्ट से आ रहा है a इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम होगा, ये होगा b प्लस सी इज इक्वल टू 1 पे, और अगर दोनों को ऐड कर दिया तुमने, इफ यू ऐड दीज टू तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा a प्लस b प्लस सी विच इज इक्वल टू 2। सो यस दिस इज वेरी कंसिस्टेंट, दैट इज वाई जिन वैल्यूज पे हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन मिनिमम होगा वही सेम पे b प्लस सी हमारा, मतलब a इक्वल टू 1 पे फर्स्ट एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाएगा, b प्लस सी इक्वल टू 1 पे सेकंड मिनिमम हो जाएगा, और थर्ड वाला a which is equal to 1, b plus c which is equal to 1, दोनों का सम इक्वल टू 2 पे मिनिमम होने जा रहा है, यानी कि दिस इज वेरी कंसिस्टेंट। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर विल बी दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 plus 2 plus 2 greater than equal to 6. So answer आ जाएगा minimum value will be equal to 6. A very very beautiful question. क्या है क्लियर है? ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए आगे कभी, तो उस कंफ्यूजन को भी दूर कर ही लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 प्लस 2/a प्लस बी प्लस सी, दिस इज डिफरेंट and this is not equal to 2 times a plus b plus c plus 2/a plus b plus c। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। सेकंड वाले केस में हम क्या करेंगे, यहां पे 2 को कॉमन ले लेंगे और इनसाइड ब्रैकेट दिस विल बी a plus b plus c plus 1/a plus b plus c। so a plus b plus c this plus 1/a plus b plus c this will always be greater than equal to 2, और पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। बट इस केस में दिस इन दिस केस a plus b plus c by 2 को अगर हम मान लें इक्वल टू y, तो दिस बिकम्स y plus 1/y, दैट इज वाई दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओनली। तो दोनों एक्सप्रेशन हमारे एब्सोल्युटली डिफरेंट हैं और इनमें कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। ठीक है, ओके, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो जस्ट इन केस अगर इस क्वेश्चन में हमारा 3 टाइम्स a plus b plus c होता, तो उस केस में हमें थर्ड वाले को हमें इस पार्ट तरह से ही ब्रेक करना होता, तब ऐसे ही ब्रेक करना होता, और फिर हमारा आंसर डिफरेंट आता। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या फर्क समझ पा रहे हो? ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है, और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें x प्लस 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना, अगर कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है तो।
बट कैसे कन्वर्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा समझ के ही कन्वर्ट करना है, इक्वालिटी भी इंश्योर करना है कि उन केसेस में मिनिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC आर पॉजिटिव देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी क्या वैल्यू हो सकती है। तो कोई डेफिनेट मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कैन बी अ वैल्यू। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम निकालना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सो फोकस ऑन द फर्स्ट ब्रैकेट कर रहा है 4a² प्लस a प्लस 4, और हमारा डिनोमिनेटर में है a इंटू बी इंटू सी। तो फर्स्ट ब्रैकेट के साथ में अगर सिर्फ a को कंबाइन कर लें, बिकॉज a आ रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में सिर्फ, सो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा बन जाएगा 4a² प्लस a प्लस 4 डिवाइडेड बाई a। हर एक क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, तभी बेस्ट रहेगा। क्या कह सकते हैं इसको, वी कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू 4a² बाई a विच इज 4a प्लस 1 प्लस 4 बाई a। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स a प्लस 1 बाई a प्लस 1, okay, and a plus 1 by a is greater than equal to 2, so 4 times a plus 1 by a will be greater than equal to 2 into 4 8, और उसमें भी 1 ऐड कर रहे हैं, so this will be greater than equal to 9। पहला एक्सप्रेशन तो ये आ गया। सिमिलरली सेकंड वाले में देखोगे 7b² प्लस b प्लस 7 by b, so that will become 7b plus 1 plus 7 by b, which will be 7 times b plus 1 by b plus 1, again b plus 1 by b will be greater than equal to 2, तो 7 टाइम्स b प्लस 1 बाई बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14, और प्लस 1 कर रहे हो तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5c² प्लस c प्लस 5 डिवाइड बाई c है, सो दैट विल बी 5c प्लस 1 प्लस 5 बाई c, विच विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स c प्लस 1 बाई c प्लस 1। अब c प्लस 1 बाई c तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और ओवरऑल एक्सप्रेशन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 11। सो क्या यहां से हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं? For the whole expression we can say that the whole expression will be greater than equal to, first bracket हमारा क्या आ रहा है, greater than equal to 9, second is greater than equal to 15, और third is greater than equal to 11। 9 into 15 into 11 क्या वैल्यू आएगा? 9 into 15 is 135, 135 1350 plus 135 1485, so this expression is greater than equal to 1485। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज 1485, बट क्वेश्चन हमसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट कैन बी अ वैल्यू। तो हमारा जो भी वैल्यू होगा दैट विल बी ईदर 1485 और ग्रेटर देन दैट। तो 560 आंसर नहीं हो सकता, 1400 नहीं हो सकता, 980 नहीं हो सकता, द ओनली आंसर कैन बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द ओनली आंसर। और एबीसी का इंटीजर होना जरूरी, वो तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना लॉजिक लगाना था कि मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी थी, उसके बाद में देखना था कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि मिनिमम वैल्यू या उससे हायर है, और सिर्फ एक वैल्यू है तो दैट विल बी द आंसर। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज होती और फिर क्वेश्चन पूछता है ए एंड बी, बी एंड सी अकॉर्डिंगली, तो वैसे भी सॉल्व कर लेते, तब भी हमारा लॉजिक यही रहता कि 1485 या उससे हायर वैल्यू ही हम एक्सेप्ट करते, उससे हायर वैल्यू हम एक्सेप्ट करते, उसके अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू a क्यूब 1 अपॉन a क्यूब b क्यूब c क्यूब इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब होल स्क्वायर इंटू c क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब होल स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब होल स्क्वायर इंटू b क्यूब। अगेन जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो पहला जो समेशन लिखा है ना, इसको डिनोमिनेटर के थ्रू एडजस्ट करो। तो कोई इस केस में हमारा मल्टीप्लीकेशन था, तो ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाइड थी, तो हमने पहले एक एक्सप्रेशन लिया, दैट मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड एक्सप्रेशन, दैट मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड एक्सप्रेशन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ समेशन है, एडिशन है, तो इस केस में क्या होगा, पहला जो एक्सप्रेशन लोगे प्लस सेकंड वन प्लस थर्ड वन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां करते हो कि साफ साफ दिखता है कि यहाँ पे एडिशन है वहां मल्टीप्लिकेशन है, बट फिर भी ऐसी गलती करोगे। ठीक है, सो सबसे पहले पहला ब्रैकेट देखेंगे, सो दैट विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब होल स्क्वायर इनटू c क्यूब, और डिवाइड में भी c क्यूब आ रहा है, सो इफेक्टिवली बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a क्यूब b क्यूब, क्योंकि c क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया। So this will be a to the power 6 plus b to the power 6 plus 2a cube b cube divided by a cube b cube. So a to the power 6 by a cube b cube हो जाएगा a cube divided by b cube plus second हो जाएगा b cube divided by a cube और plus 2. So क्या इन दोनों एक्सप्रेशन को देख पा रहे हो, a cube by b cube अगर x है तो b cube by a cube क्या हो जाएगा 1 by x, that will be 1 by x. ठीक है,
ओके, 1/x हो जाएगा और साथ में मेंशन होना चाहिए था दैट ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और साथ में 2 ऐड हो रहा है, सो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सिमिलरली ये तो पहले वाले के लिए हो गया, सेकंड वाले के साथ भी यही होगा, दैट विल आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और बाय द सेम लॉजिक थर्ड वाला विल आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। और 12 वैल्यू कब आ गया, व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो, व्हेन ऑल आर इक्वल सो दिस विल बी इनिशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा 1, इनसाइड आ जाएगा a प्लस b 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1, यानी कि दिस विल बी 12 व्हेन ऑल थ्री आर इक्वल, नॉट जस्ट इक्वल बट ऑल्सो इक्वल टू 1, ऑल्सो इक्वल टू 1, बिकॉज हमारा a क्यूब बाई b क्यूब शुड बी इक्वल टू 1। अगर हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब बाई b क्यूब प्लस b क्यूब बाई a क्यूब इज इक्वल टू 2, तो इन दैट केस a क्यूब बाई b क्यूब विल बी इक्वल टू 1, और अगर a और b पॉजिटिव है तो a बाई b विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, a और b की वैल्यूज मल्टीपल भी हो सकती है, आई मीन कि a कैन बी सम के, b कैन ऑल्सो बी के, c कैन ऑल्सो बी के, तो भी अकॉर्डिंगली ये सॉल्व होके हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट वही दे देगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है? एज लॉन्ग एज एबीसी इक्वल है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 2, अच्छा जो एक्सप्रेशन फर्स्ट वाला है दिस इज 4 टू द पावर x प्लस 1, जस्ट इन केस क्योंकि छोटा फॉन्ट है ना तो कंफ्यूजन हो सकता है, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x प्लस 2, सो पावर में प्लस 2 है, ये प्लस 2 सेपरेटली नहीं है, सो दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड है y स्क्वायर प्लस 4 और थर्ड है मॉड ऑफ log z प्लस 3 एंड द होल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 6, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ट्राई करो अपने एंड पे, और क्या अब तक सीखे हो, क्या उन चीजों का अप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 4 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 2, so this is 2 to the power x into 2 square which is 4। ठीक है, अगर हम 4 को बाहर ले लें so this will be equal to 1 by 4 times 4 to the power x plus 1 upon 2 to the power x, है कि नहीं? ठीक है, और 2 to the power x एक पॉजिटिव नंबर है, और क्या हम 4 to the power x plus 1 को लिख सकते हैं प्लस 1 by 2 to the power x, क्या इसको लिखा जा सकता है, 2 to the power x से डिवाइड करोगे, so 4 to the power x डिवाइड by 2 to the power x will be 2 to the power x only, because 4 to the power x क्या है, 2 to the power 2x, और 2 to the power x डिवाइड करो तो यहां बचेगा 2 to the power x, और सेकंड वाले टर्म में हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 to the power x। 2 to the power x एक पॉजिटिव नंबर है, सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट साथ में 4 डिवाइड भी तो हो रहा है, तो 1 by 4 भी हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4, बिकॉज एक 2 स्क्वायर का ये जो 4 आ रहा है इसका भी ध्यान देना है, सो 2 डिवाइड बाई 4, क्या बात क्लियर है? सिमिलरली सेकंड एक्सप्रेशन में देखोगे ये तो इजी है, y स्क्वायर प्लस 4, अब y स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। थर्ड एक्सप्रेशन में क्योंकि मॉड ऑफ log z है, log z तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बट मॉड ऑफ log z क्या वैल्यू लेगा, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में 3 ऐड कर रहे हो, सो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां से मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 by 4 विच इज 1 by 2 इंटू 4 इंटू 3, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 by 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, मिनिमम वैल्यू आ गया 6, और क्वेश्चन में लिखा है दिस इज इक्वल टू 6 ओनली, यानी कि मिनिमम वैल्यू के बराबर ही है, ये पूरा प्रोडक्ट हमारा मिनिमम वैल्यू के बराबर ही है, यानी कि सारे के सारे एक्सप्रेशंस अपनी अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहे हैं, so that implies कि फर्स्ट केस में हमारा 2 to the power x plus 1 by 2 to the power x that is equal to 2, और अगर ऐसा है so this implies that 2 to the power x must be equal to 1, and if that is equal to 1 तो x must be equal to 0, so x equal to 0 आ गया। Similarly y square plus 4 must be equal to 4, and if that is equal to 4 तो y square is equal to 0, यानी कि y will be equal to 0। अब ऐसा नहीं करना x 0 आ गया y 0 आ गया तो z को भी 0 मान के पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर दो,
ठीक है, बिकॉज z में वैसे भी log आ रहा है, ठीक है। सो प्लस mod ऑफ log z प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3, हेंस mod ऑफ log z विल बी इक्वल टू 0, या फिर log z 0 हो जाएगा, और अगर log ऑफ सम नंबर इज इक्वल टू 0 सो दैट नंबर मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहां से x 0 आ जाएगा, y 0 आ जाएगा, बट z विल बी इक्वल टू 1, और दैट इज वाई जो हमारा आंसर होगा x प्लस वाई प्लस z दैट विल बी इक्वल टू 1, आंसर विल बी इक्वल टू 1। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, आई बिलीव समझ में आया होगा। और कहीं भी अगर ऐसे क्वेश्चन में डाउट रहता है तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना कि कहां पे तुम्हें डाउट है, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सारे के सारे केसेस में निकाला मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आ रही है, और जब हमने मल्टीप्लाई किया सारी मिनिमम वैल्यूज को तो अल्टीमेटली हमें रिजल्ट मिला इक्वल टू द वैल्यू जो कि गिवन है प्रोडक्ट में, विच इंप्लाइज कि सारे के सारे एक्सप्रेशन अपनी अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहे हैं। तो हमने सबके लिए मिनिमम वैल्यू निकाल लिया, उससे हमें x की वैल्यू 0 आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया और z का वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था यहां पे, जब 4 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 2 को हमें ब्रेक करना था, ठीक है, और ब्रेक करके आइडेंटिफाई करना था कि दिस विल बी x प्लस 1 बाई x के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, सम पॉजिटिव नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ दैट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये समझना। और अब के बाद कभी भी ऐसा नंबर तुम्हें दिखेगा तो हमेशा तुम्हें ध्यान देना है कि क्या है उस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है नंबर हमारा, ठीक है। कभी कभी एक्स्ट्रा पावर्स दिया होगा जैसे कि इस केस में था, तो उन एक्स्ट्रा पावर्स को सेपरेट करोगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is a positive number then find the maximum value of 6 times a to the power 3 by 2 upon square root of 1 plus a to the power 6। अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस गिवन एक्सप्रेशन का, मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है उस केस में। अब एक्सप्रेशन में हमें क्या गिवन है, a to the power 3 by 2 गिवन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में गिवन है 1 plus a to the power 6, 1 plus a to the power 6। तो क्या कोई कनेक्शन स्टैब्लिश कर पा रहे हो इन दोनों के बीच में, क्या कोई कनेक्शन स्टैब्लिश कर पा रहे हो? a to the power 6 क्या है बेसिकली, a to the power 3 by 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा a क्यूब, so this will be a to the power 3 by 2 whole power 4। so if we assume let us say a to the power 3 by 2 is equal to x, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 6x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x to the power 4, 1 plus x to the power 4। अब एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम x से डिवाइड कर दें, ठीक है, x से डिवाइड करते हैं, x को डिनोमिनेटर में लेके आ जाए, सो दिस विल बी 1 अपॉन x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 4। अब x को स्क्वायर रूट के इनसाइड लेके जाओगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा x, 1 बाय x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा 1 बाय x, ठीक है, सो दैट इज वाई 1 बाय x स्क्वायर हो जाएगा इनसाइड जाके, तो 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय x स्क्वायर इनटू 1 प्लस x टू द पावर 4, दिस विल बी 6 अपॉन 1 by x square plus 1 by x square into x to the power 4 which will be x square। क्वेश्चन खत्म हो गया, 1 by x square plus x square के फॉर्म में आ गया, और x square एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या होगा इनसाइड द स्क्वायर रूट, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, बट ये डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रहा है और उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रहा है 2। हमें क्या करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द एक्सप्रेशन। तो अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, इफ यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस एक्सप्रेशन, तो जो डिनोमिनेटर है हमारा उसको मिनिमाइज करेंगे, डिनोमिनेटर शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, मिनिमम होना चाहिए, और हमें पता है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, एक सेकेंड, सिक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3√2, 3√2 आंसर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी सोच सकते थे कि अल्टीमेट न्यूमरेटर में x आ रहा है, उसको हमें कैंसिल आउट करना है, तो डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को आउटसाइड ले लो, ठीक है, सो जैसे ही एक्स स्क्वायर को आउटसाइड लेना है तो यू कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर इनटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 6x अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरीकों में कोई फर्क नहीं है, बस सोचने के तरीके में फर्क है। अगर पहला वाला तरीका सोचने में प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा तरीके से सोच लो कि अल्टीमेटली हमें इनसाइड द स्क्वायर रूट को समहाउ x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, क्योंकि उस फॉर्म में हमें इजीली मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट मिल जाएगा अगर उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो, ठीक है। कहीं पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स मिल रहा है, ठीक है, या फिर हमें x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मिल रहा है,
तो ऐसे केसेस में या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 + 1 मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें डेफिनेटली एक्स प्लस 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंगली निकाल पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9 - x होल स्क्वायर्ड इंटू x - 4 होल क्यूब। 9 - x होल स्क्वायर्ड इंटू x - 4 होल क्यूब। तो अगर हमें कहीं पे भी गिवन है a स्क्वायर b क्यूब या फिर इन जनरल a टू द पावर m b टू द पावर m, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट व्हेन a बाई m इज इक्वल टू b बाई n। ठीक है, मैक्सिमम एट a बाई m इज इक्वल टू b बाई n। और ऐसा इसका लॉजिक क्या है, AMGM इनइक्वालिटी, दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और हमें a टू द पावर m चाहिए, तो a को m पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस विल बी a बाई m प्लस a बाई m प्लस a बाई m टिल m टाइम्स, सबका सम क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, प्लस b बाई n प्लस b बाई n एंड दिस n टाइम्स दिस डिवाइडेड बाई m प्लस n। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a बाई m टू द पावर m into b by n to the power n to the whole power 1 by m plus n। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, when a by m is equal to b by n, जब ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे इक्वल होंगे। सो a by m will be equal to b by n, that is the logic behind this particular shortcut। ठीक है, तो सेम चीज यहां पे अप्लाई करेंगे, 9 - x होल स्क्वायर इंटू x - 4 होल क्यूब। तो शॉर्टेस्ट मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, when 9 - x by 2 this is equal to x - 4 by 3। So this will be 9 into 3, 27 minus 3x is equal to 2x minus 8, and hence 5x is equal to 35. So x will be equal to 7। और जैसे x equal to 7 आ गया, पुट कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 9 minus x which is 9 minus 7 का होल स्क्वायर, so 2 स्क्वायर into 7 minus 4 whole cube which is 3 cube। So 4 into 27, maximum value will be 108। Answer will be 108। Okay। अदरवाइज AMGM अप्लाई करते तो 9 - x by 2 प्लस 9 - x by 2 प्लस x - 4 by 3 प्लस x - 4 by 3 प्लस x - 4 by 3 that divided by 5 will be greater than equal to 9 - x by 2 whole square into x - 4 by 3 whole cube to the whole power 1 by 5। अब लेफ्ट हैंड साइड में फोकस करो, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, this will be 9 - x plus x - 4 डिवाइड बाई 5, x से x कैंसिल आउट हो गया, 9 - 4 इज 5, 5 by 5 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर 1 by 5 था, पावर 5 कर दो, तो 1 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - x होल स्क्वायर इंटू x - 4 होल क्यूब डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। बाकी कहानी तो समझ ही गए हो कि अब हमारा एक्सप्रेशन विल बी लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, तो मैक्स वैल्यू हमारा आ जाएगा 108। दिस इज द लॉजिक, बट करेंगे हम फास्ट फटाफट ऐसे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू 540 इंटू 35 होल स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5a प्लस 7b। अगेन 5a प्लस 7b का हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, पिछले वाले केस में हमें प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था। ठीक है, और इस वाले केस में समेशन है, सम है जिसका की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू g1 वाला प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे, बट इस बार क्या चाहिए हमको, a स्क्वायर चाहिए और b क्यूब चाहिए, a स्क्वायर चाहिए और b क्यूब चाहिए, यानी कि 5a को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, सो दैट विल बी 5a by 2 इन 2 पार्ट्स प्लस 7b by 3, 7b को 3 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, दिस डिवाइडेड बाई 5, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5a by 2 होल स्क्वायर into 7b by 3 whole cube to the power 1 by 5। सो वैल्यू हमें मिल जाएगा 5a plus 7b डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब इंटू 5 स्क्वायर 7 क्यूब डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 3 क्यूब टू द होल पावर 1 by 5। तो a स्क्वायर b क्यूब को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, यहां पे पावर कितना आ रहा है, 5 का कितना आ रहा है, 7 का कितना, 2 का कितना, 3 का, तो 540 कैन बी रिटन एज
4 इंटू 135 यानी 2 स्क्वायर इंटू 27 इंटू 5, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 प्लस 35 स्क्वायर है यानी कि 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो दिस इज इफेक्टिवली 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 क्यूब 7 स्क्वायर। पुट कर दोगे सो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 क्यूब 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 3 क्यूब, तो 2 स्क्वायर 3 क्यूब को कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारा 5 टू द पावर 5 और 7 टू द पावर 5 और उसकी पावर करनी है 1/5। 5 टू द पावर 5 और 7 टू द पावर 5 का पावर करना है हमें 1/5, तो इफेक्टिवली दिस वैल्यू विल बी 5 into 7, so 5a plus 7b by 5 is greater than equal to this value, so hence 5a plus 7b will be greater than equal to 35 into 5 175, this will be greater than equal to 175, यानी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी 175, that will be the answer। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, क्या ये समझ में आता है? ओके और यहां पे भी हम कह सकते थे क्योंकि अल्टीमेटली हमें 5a/2 में ब्रेक करना है 5a को, तभी a स्क्वायर आएगा, और 7b/3 में ब्रेक करना है 7b को, तभी b क्यूब आएगा, एंड दीज टू शुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि यहां से a और b का रेशियो क्या आ जाएगा, a/b विल बी इक्वल टू 14/15, 14/15, और यहां पे आ रहा है a स्क्वायर b क्यूब। ओके, नाउ यू कैन चेक कि यहां से अल्टीमेटली a इज इक्वल टू 14 और b इज इक्वल टू 15 वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू क्या रहा है हमारा 35 स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, फिर यहां से तुमने 2 स्क्वायर निकाला, इसके बाद बच गया तुम्हारा 135 विच इज 5 इंटू 3 क्यूब, सो 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब अल्टीमेटली आ गया 14 स्क्वायर इंटू 15 क्यूब, ये तो आ रहा है, सो a एंड b शुड बी 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, a बाई b का रेशियो तो आ ही गया था, a एंड b शुड बी 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, तो 5a प्लस 7b आ जाएगा हमारा 5 इंटू 14 प्लस 7 इंटू 15, तो 70 प्लस 105 एंड हेंस 175। ठीक है, हाँ यहां से स्ट्रेट अवे तुम वैल्यू 14 और 15 नहीं निकाल सकते थे, बिकॉज डिपेंड करता है रेशियो हमारा 14/15 आया है, a एंड b कुड हैव आल्सो बीन 28 और 30 या फिर 42/45, कुछ भी ऐसा वैल्यू हो सकता है, रेशियो हमारा 14/15 रहता, तो उसके लिए a स्क्वायर b क्यूब की वैल्यू क्या गिवन है, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, उसको भी हमें चेक करना जरूरी था। हाँ अगर क्वेश्चन पूछता कैन बी, तो हमारा a और b का जो रेशियो है 14/15 उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते थे कि a कैन बी 14 के, b कैन बी 15 के, एंड अकॉर्डिंगली द आंसर कुड बी 175 के। क्या ये बात समझ में आता है? ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस सेशन, एंड आई बिलीव जितने भी क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं उनमें मजा आया होगा, समझ में आएंगे बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया, तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, और अगर कोई भी डाउट रहता है कहीं पे भी, तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।